I told you x into x. I keep it into the bracket. This is case of multiplication. Multiplication का केस है ना, मल्टीप्लाई है. So x is the base and the power is 1. Again come here, x is the base and the power is 1. And what we are doing, we are having both the variables or numbers, whatever is there, but we are multiplying both of them. So this is the condition, or this is the rule of mathematics. If we have the same base, if we have the same base, here is the base x, and similarly here is the base x. Both are the same base. So what we do, we will write base once and we will add the powers in case of multiplication. So one power is there and one power is there. So it will be x to the power 2. Simple. Again, y to the power 2 into y to the power minus 1. Why? How? We have the same base y, okay, and the powers on them y to the power 2. बोलना भी सीखना है. You are the students of mathematics. You must know the language. हर subject की अपनी एक language होती है. Okay, so this is the language of mathematics. Y to the power 2 और y square. यहाँ पे लिख सकते हो आप, जब पावर अगर 2 होती है, so you can call it square. If power is 3, you can call it cube. And more than them, you can call as it is. Y to the power 4, x to the power 5, y to the power 6. But up to the 2 and 3, you can call, if power is 2, then it is a square. If power is 3, then it is a cube. So here we can call it y square. Okay, y square. Else you can say y to the power 2, no problem. Okay, but y square is a little bit smarter. It looks that you are seasoned player of mathematics. Seasoned जानते हो ना, मजा हुआ खिलाड़ी बोलते हैं. ये कोई seasoned, veteran, experienced. ठीक है? तो if you are calling it y square, it looks good. It looks like that you are very good students of mathematics. So y square, and this is y to the power minus 1. We have the same base and different powers. And this is the case of multiplication. So in case of multiplication, what we do? We add powers. You can write down, or I don't think so this is very important to write down. Okay, you can simply get it. If we have the same base and different powers, then what we do in case of multiplication, when we multiply both of them, we add powers. So what is the base? Base is y. And what are the powers? 2 plus minus 1. Okay? Y 2. Now this is plus and this is minus. First we will multiply the signs, because this is case of multiplication. You will come to know automatically. So plus minus. If we multiply plus and minus, what we get? Minus. Sign will be minus and then 1. Okay. These are the smaller things. I am not expected and you are not expected to explain all these small things, but I will be explaining everything. Okay. And I never want you to, when you attend the farewell of this batch, I never want you to go for all these basics in any other coaching or by any other person. I think and I believe that after the completion of this batch, you are not going to ask, or you are not going to have any problem with the basics of maths. Okay, so these are the basic things. So this will be finally 2 minus 1, 1. And if power is 1, you can write or not, either write or not, no problem. So answer will be y. Okay. Similarly, if y to the power a into y to the power x plus a, yeah, x plus 1. y to the power a plus x plus 1. Simple. Sometimes what happens, it's a psychological effect. You have some lengthy questions, directly you surrender.
डायरेक्टली यू गिव अप। मैथ्स में ऐसा करना ही नहीं। अभी तो सामने क्वेश्चंस आएंगे, देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट, स्ट्रीम। तो उसमें क्या होता है, इट इज लाइक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, लिटिल बिट, 4-5 लाइन्स। तो कभी भी उन लाइन्स को, यू लुक एट द लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स दिया 5 और 6 लाइन्स, तो इस तरीके से नर्वस करना ही नहीं है अपने आप को। और इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर अनसीन पैसेज एंड ऑल। तो कॉम्प्रिहेंशन करते हैं इंग्लिश में, पेपर 1 में भी आता होगा आपको, कॉम्प्रिहेंशन आता है ना। तो वो जो प्रैक्टिस है वो यहां पे अप्लाई हो जाएगी। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सिंगल टारगेट, सपोज यू आर अटेंडिंग द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, you think that you are just preparing or you are just targeting only one thing for your preparation, but simultaneously there are some other things you are not going to notice, but you are preparing simultaneously. Like if you are going for those long questions of the mathematics, simultaneously it is helping you to solve your unseen passages or all. What is this? In unseen passage, you understand the passage, whole passage, then you answer the questions. Simultaneously in the mathematics, you have a question. What you are doing? You are understanding a question and then you are answering. So whatever you are doing, just chill and think that whatever you are doing, it is only for your benefit. Okay. But when you see suddenly that 5 or 6 line question, oh, this is very difficult question. It is never going to happen. One line by line, line by line. First, in the mathematics, read first line and understand it. Okay, until you understand, no need to switch over to the next line. First understand first line, then second line, then third line. And after reading every line or after understanding every line, take out the informations given in the question and write it at a side. I will keep telling you how to approach these kind of questions, but these are first, let us do all these. So simple, base are same, then what we do in case of multiplication, we add the powers. So a plus x plus 1. And we cannot add anything of them because all are from the different species. सब अलग अलग बिरादरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहां से हैं। ठीक है, तो आप किसी को किसी में मर्ज नहीं कर सकते, तो ऐसे ही लिखेंगे। ओके, सो दीज आर सिंपल थिंग्स। इसमें एक चीज और, लाइक x to the power 4, y to the power 3 and z square into x to the power -1, y to the power 4 and z to the power -2. This is one number and this is one number. I put it in the bracket to understand. Okay. So what will be the answer? मैं इतनी देर से इसीलिए समझा रहा था। हाँ बोलो बोलो। x cube, okay, y to the power 7 and z to the power 0। आगे सबको समझ में आ रहा है ना? हमने किया क्या, देखो बस मेरा कहने का मतलब यह है कि यू कैन हैव मल्टीपल वेरिएबल्स। तो आप इनको कैसे करेंगे, कंफ्यूज हो गए कि एक्स, तो जो सेम बेस है, मैं इतनी देर से बता रहा हूं ना, यू हैव टू लुक फॉर द सेम बेस। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सेम बेस में ही हो पाएगा। इफ वी टॉक अबाउट वेरिएबल्स, नंबर्स में तो आप इजीली कर देते हो, 4 - 2 2, 7 - 3 4, वो कर देते हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरिएबल्स, ऑलवेज लुक फॉर द सेम बेस। सो एक्स इज सेम बेस एंड एक्स इज सेम बेस। सो एक्स, what is the power, and cases of multiplication, and in the case of multiplication what we do, we add the powers. So base is same, x, what is the power of x, 4, and here -1. Now I will write directly -1. Okay, now come to y to the power 3 and y to the power 4, add करना है ना, we need to add. Now come to the z to the power 2, या z square भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, z square, and z to the power -2. Again x to the power 4 - 1 3,
and y to the power 3 plus 4 7 and z to the power clear. This one, this kind. So you want me to explain again? Oh, okay. You are this one. Okay, I will try, but it's a matter of habit. Okay, I can try, no problem. Okay. तो अभी तो ठीक है ना, इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो. एटलीस्ट यू कैन कॉम्प्रोमाइज दिस वे. ओके, आई विल टेक केयर लेटर ऑन बिकॉज माई एम इज टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल. ओके, सो x to the power 3, y to the power 7, z to the power 0. ओके, ये तो क्लियर हो गया. लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि इसका आंसर क्या आएगा मालूम? x to the power 3 and y to the power 7. हाउ? तो जीरो होना चाहिए, फिर तो सब कुछ जीरो हो जाएगा. लेकिन आंसर x to the power 3 and y to the power 7. वाई? कुछ गड़बड़ है यहां पे. आपको एक चीज समझ में आ रही हो, अगर इसकी वैल्यू, अगर ये आंसर आ रहा है तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? तभी तो 1 का मल्टीप्लाई होके वी कैन गेट दैट आंसर, दैट इज x to the power 3 and y to the power 7. अब यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना. समटाइम्स आई बिहेव लाइक दिस दैट यू कैन गेट कंफ्यूज्ड. यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि लाइफ में whenever you have anything, any base with the power 0, कुछ भी हो, but power 0 होनी चाहिए. If I talk about all the students of my class and power is 0. If I talk about myself, my power is 0. Anything with the power 0, the value will be 1. If there is anything with the power 0, value is always equal to 1. If I am saying whatever, z to the power 0, 1. Okay, whatever, a to the power 0, 1. Everything, if any base, any number, anything with the power 0, it will be always equal to 1. And this is very important and conceptual question in the maths. ये आपको आना ही चाहिए. और इसमें भी आपके सामने you can get a question with this concept. While solving, you will get a step where you will be having this kind of thing with the power 0. So directly you must know. Otherwise, we are going to tackle a lot of questions. Don't worry, you will come to know. But anything with the power 0, that is always equal to 1. Okay. अब मैथ्स में कुछ भी वो नहीं होता. It's not like magic. मैथ्स में कुछ भी मैजिक नहीं होता, लॉजिक होता सब. ठीक है. लॉजिक, कोई भी चीज आती है उसके पीछे एक वजह होती है. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन व्हेन इट कम्स टू द राइट पॉइंट. Okay, now this is the case of multiplication. I think so that you can understand. What you need to do with the same base, you need to write the base and you need to add the powers in case of multiplication. Okay, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं फिर. नहीं, whenever you have the power 0, it is always 1. Convert it into the 1. Okay, so I have converted into 1, so answer will be x to. If here we are placing, नहीं, वो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि आपको वो इस तरीके से आंसर देंगे या ऑप्शन देंगे कि आपको पता ही होना चाहिए कि पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है. वो ऐसे कभी लिखेंगे नहीं. वो क्या करेंगे, सपोज दिस इज अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन एंड दे विल बी हैविंग, you will be having 4 options. Okay, in all those options you will be not having any kind of z to the power 0, but you will have one option like this. But when you will come to know about the right option, if you know this concept, because z to the power 0, it is always equal to 1, so answer will be this. Okay, so this is only for your memory and knowledge. If you are a student of mathematics and you don't know about this, it means you are not a true student of mathematics. So there are some concept. ऐसा होता है ना कि अभी आपका एक क्वेश्चन आता है आईसीटी में, कन्वर्ट बाइनरी टू द डेसिमल सिस्टम एंड ऑल. ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं हो सारा लिखे कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करो. वो एक कोड दे देगा, इसको इसमें कन्वर्ट करो. बट इफ यू नो अबाउट ऑल अबाउट दैट, आफ्टर रीडिंग दैट कोड यू विल अंडरस्टैंड what system is this automatically.
So if you have these kind of questions, if anything with the power 0, you must know that the value of this is always 1. ठीक है, और ये होता कैसे मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज मैथ्स में सब कुछ लॉजिकल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि लॉजिक या आपको रटनी है, कुछ नहीं करना है. लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, सो इट विल बी वेरी वेरी, और इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. लाइक ये तो मल्टीप्लीकेशन का केस था, एक डिवीजन का केस होता है. देयर इज वन केस ऑफ डिवीजन, like if x to the power 4 upon x to the power 2, ये क्या हो रहा है? This is case of division. Okay, so now x to the power 4 by x to the power 2, what will be answer? If you know, x to the power 1 2 या x square बोल सकते हैं, but how? Correct. In case of multiplication, we were adding the powers. And just opposite of it, when it comes to the case of division, what we do? We subtract. We subtract of powers. How? We have the same base. Okay. So this is x to the power 4. We will take this power 2 upside. First of all, this is a rational number, irrational number upon form a by b x by. This is called numerator. I will be telling all these basics later on. First, I want you to concentrate on this concept that whenever we have the case of division with the same base, bases are same, x. Okay, so x to the power 4, and here downside we have the x to the power 2 or x square. So we will take this 2 upside. Okay. And this is the plus, so it will be minus. Because in the case of division, what we do? We subtract the powers. In case of multiplication, what we were doing? We were adding the powers. But opposite division case, if we are going to divide, we have the same base. What we do? While changing the side, we will subtract. Why I am saying while changing the side? It might be possible if I am not taking it upside. I want this to be coming downside. ऐसा भी हो सकता है, बट अभी हम ज्यादा, I don't want to make it difficult for you. अभी इतना ही समझो आप. Okay, so the case of division, we subtract the powers. Okay, so what we do? This is x to the power 4. We will take this 2 upside. So this is a plus. It will be minus because we need to subtract in the case of division. So it will be x to the power 2, and we can call it x square also. Okay, x square or x to the power 2. Okay, so what is the main thing? If x to the power a upon x to the power b, it means x to the power a minus b. Or I want this to be coming downside. So it will be, if I am taking this downside, so it will be 1 at the place of numerator. And this is x to the power b, and I am taking it downside, x to the power b minus a. लेकिन अभी इसके चक्कर में मत पड़ो. आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड. जितना बताया बस उतना ही, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है? ओके. आया समझ में? तो ये भी एक चीज होगी. अब ये तो आप कर ही सकते हो. 5x इंटू माइनस 4x क्या होगा? 5x इंटू माइनस 4x. What will be the resultant? Simple. This is x and this is x. We will take out the same base variables. So this is x, this is x. Nothing is written at the place of power. It means 1. Okay. So here is the 1 power and here is also 1 power. Cases of multiplication. So we will have x and powers of x will be added 1 plus 1. Okay. Now come to the numbers. 5 is here and minus 4 is here. So plus 5 into minus 4. Minus 20. I told you yesterday. So this is minus 20. So answer will be minus 20x square. Gradually. आराम से. ठीक है, मैं इसके 1-2 क्वेश्चन देता हूं
वो आपको करनी है। नोट कर लिया ना? ओके, 4xy इंटू -3x - 1y. What will be the answer? -12 y स्क्वायर। सबका आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो, पूछो कहाँ प्रॉब्लम है। अगर आप पूछोगे तो आई गारंटी यू आप उस चीज को लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। आप में से कितने लोग मेट्रो से आते हैं? अभी मेट्रो से आते हो? तो मेट्रो से जब आते हो तो आपको कितने लोग मिलते हैं? बहुत सारे मिलते हैं ना। यू every day if you come like this, if you commit by the metro, you meet a lot of persons, multiple personalities. लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर मैं किसी को लाके आपके सामने खड़ा कर दूंगा तो शायद ही आप बता पाओगे हाँ मैं आ रहा था या आ रही थी, सो आई मेट दिस पर्सन एट विच प्लेस एंड व्हाटएवर, यू कैन नॉट टेल। अब समझो कि आप आ रहे हो तो कोई आपसे टकरा के चला गया और आपको गुस्सा आया, आपने उसको घूर के देखा, यू स्टेयर्ड, ठीक है। अब लड़ाई वड़ाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा माइंडसेट है। लड़ भी लिए थोड़ा बहुत, हॉट एक्सचेंज टाइप। अब यहां पे आने के बाद 1 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद भी मैं उस बंदे को लाके आपके सामने खड़ा कर दूं तो आप भूलोगे उसे? फटाफट देखते ही पहचान लोगे कि इसने ये वही है। सो व्हाट इज द पॉइंट? हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट पर्सन इवन आफ्टर 2 days? देखो, जब कोई चीज एक डिफरेंट एंड एबनॉर्मल वे में, जब कोई चीज एनीथिंग टेक्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू और विद यू इन एबनॉर्मल वे, तो आपकी वो मेमोरी में चली जाती है। ये इसलिए मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि अगर आप पे कोई भी रीअटेम्प्ट का बोलता हूं, आफ्टर रीचिंग होम रीअटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड इवन यू आर इन द क्लास, आई कीप आस्किंग इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क टू मी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है एंड इफ यू आर गोइंग दैट प्रॉब्लम टू आस्क, तो जब मैं यहां पे बताऊंगा तो ये प्रॉपर एक इंसिडेंस बन जाएगा आपकी लाइफ में कि मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, सर से मैंने पूछा था, सर ने ऐसे बताया था, फिर वो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसलिए पूछना जरूरी होता है, अदरवाइज आप ऐसे बैठे रहोगे, कोई और पूछेगा या बाद में मैं चेक, फिर वो बाद में हो जाता है। तो जब भी मौका मिले सो यू डायरेक्टली आस्क। अगर वाकई में वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, यू आर हैविंग लिटिल बिट इश्यू विद दैट, आपके वो लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल दोज विल बी क्लियर। तो इसलिए मैं कहता हूं व्हेनेवर यू हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू कैन आस्क एनीथिंग। लेकिन ये मत सोचना कि छोटी सी चीज है, मैं ये पूछूंगी तो बगल वाला क्या सोचेगा, ये सब बेकार चीज है। मैं कल से आपको 2 दिन से तो बता ही रहा हूँ, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आप क्या सोचोगे। यहाँ से जाने के बाद लोग सक्सेसफुल होते जाएंगे, आपका जो इवन बेस्ट फ्रेंड्स भी होंगे वो भी आपसे बात करना बंद कर देंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग सक्सेस पाते हैं आफ्टर गेटिंग सक्सेस, वो ऐसी ऐसी चीजें बताने लग जाते हैं, पता नहीं वो होता भी, आई डोंट बिलीव सो, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीजें बताने लग जाते हैं कि बिफोर सक्सेस कोई बताएगा भी नहीं। मैं किसान का बेटा था, मैं जूते पॉलिश करता था। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब वो बताना ग्लोरीफाइड लगता है, ठीक है। अब रियलिटी तो खैर कोई नहीं जानता, वो वही जानते हैं जो उनके आसपास के। बट द थिंग इज दैट, लेकिन क्या वो सिलेक्शन लेने से पहले ये चीजें बता सकता था किसी को? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे उसे बिल्कुल अपोजिट मिलता, हेट मिलता। ओके, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कमियों को, इन चीजों को कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं। बोलना चाहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, इट डज नॉट मैटर। बीइंग स्मार्ट स्टूडेंट आई एम टेलिंग, ओके, यहाँ पे कौन क्या सोच रहा है इतना सोचो ही मत, सब एक ही जैसे, ऑल आर द चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो वही ये सोचेगा कि देखो क्लास में पूछता था, देखो आज कहाँ है। और हम सोचते ही रह गए कि वो क्या कहेगा, हु विल से व्हाट सो। ओके, तो ये चीजें भी याद रखना, क्लास में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ
two numbers 4 and -3. First we will multiply both of them, so it will be -12. I hope so you all are getting this because I told multiple times. Now x is the base and this is x, again the same basis, so x power is 1. If nothing is written over here, it means power 1. And this is the case of multiplication. What is the power of x? -1. So we will add. When we add 1 minus 1, it will be 1 minus 1. Okay. Now y to the power 1 and y to the power 1. So we will add both the powers. Any problem till here? Are you getting my point? So now -12, this is 1 minus 1, x to the power 0, y to the power 2 or y square, -12, x to the power 0 means 1. Okay. You can write and after some time you can directly skip it because there is 1 here. Why you are wasting your time? Direct eliminate it. But it is going to create no effect. So now, but for your understanding, I am writing here. Now this is -12 y square. Any problem? समझ में आ गया? Okay. मिटाऊं से? Okay. अब थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा. ओके. आपने अपना नाम क्या बताया था? ओके ओके. यू आर न्यू स्टूडेंट. आपका नाम? वंशिका. ओके ओके. फ्रॉम वेयर? देहरादून. ओके. देहरादून. तो मंसूरी तो आते आते रहते होंगे हैं? ओके. केम्प्टी फॉल के बारे में सुना है? केम्प्टी फॉल, केम्प्टी फॉल के बारे में सुना है? घूमने घूमने कोई जाता है तो केम्प्टी फॉल बोलते हैं. गए हो कभी? छोटे छोटे तो क्या कहते हैं विजिटिंग प्लेसेस हैं. केम्प्टी फॉल मंसूरी में है और मंसूरी इज जैसे देहरादून इज इन द वैली, तो ऊपर एक जस्ट लाइक अ माउंटेन, उस पर जाते हैं तो मंसूरी ऊपर पड़ जाता है. ठीक है. एंड देहरादून इज व्हाट? द कैपिटल ऑफ यूके. कैपिटल ऑफ यूके. ओके ओके. चलो आते हैं हम. अब देखो एक चीज और याद रखनी है. मैं अगर आपसे ये बोलूं, आई कैन से दिस इज नॉट डायरेक्टली इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन मैथ्स में आपको एक वे बताना चाहता हूं कि व्हाई एवरीथिंग इज लॉजिकल इन द मैथमेटिक्स. लाइक जैसे मैं बोलता हूं x टू द पावर 0, द वैल्यू ऑफ दिस इज 1. यही तो होता है ना. कुछ भी ले सकते हैं. एनीथिंग एट द प्लेस ऑफ बेस, इफ वी हैव द पावर 0, इट विल बी इक्वल टू 1. अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, इट इज नॉट डायरेक्टली इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू नो दैट इफ वी हैव एनीथिंग विद द पावर 0, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. लेकिन मैथ्स में चीजें अप्लाई कैसे होती हैं, ये आगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपकी ये लिटिल बिट जो अप्रोच है, हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक्स, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, वेयर टू पॉइंट आउट व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन. तो ये देखो ऐसे समझ में आती है. सबसे पहले मैथ्स में हमेशा याद रखना, वेन एवर यू हैव एनीथिंग लाइक आई एम सेइंग x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, व्हाट डज इट मीन? ये क्या लैंग्वेज है? दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड. एंड दिस इज राइट हैंड साइड. बचपन में थोड़ा सा भी होश में नहा के पूजा वूजा करके या कैसे भी करके स्कूल जाते होंगे तो ये चीजें याद होंगी. अगर ऐसे ही सीधे उठ के मुंह धो के चले गए होंगे तो एक अलग बात है. ठीक है. सो नाउ whenever we have any equation, this is equation in mathematics, and we have equal to. So what does it mean? Equal to. Equal to means this left hand side is always equal to right hand side. The value of left hand side will be equal to right hand side. Okay? तो सबसे पहले हमेशा याद रखना कि this is the basic principle of mathematics, that left hand side is always equal to right hand side. Another thing, according to the need, we can manipulate the faces of the question, but given we can never मैं को लगाऊंगा नहीं. If I am saying 4 is equal to 2, तो क्या ये possible है? तो it is not equal to 2. It means left hand side is not equal to
तो ये सारी चीजों में, इन ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल। बस एक लाइन आपको याद रखनी है कि दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, दैट लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड थिंग, we can manipulate the faces of the numbers and all expressions, but we can never manipulate the final value. मैंने यहाँ पे 4 लिखा, this is equal to 16/4. So we are just manipulating the faces, but the value will be 4. 24/6. What does it mean? 4. 4x to the power 0. This will be 1. So it will be 4. So ultimately, left hand side is equal to right hand side. पहले तो ये। अब ये भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कैसे अप्रोच किया जाता है। जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे तो अप्रोच कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, या कोई भी z टू द पावर 0, y टू द पावर 0, वॉट एवर, होल क्लास टू द पावर 0, जो कुछ भी है, ओके, इट इज इक्वल टू 1। पर ये तो मैं कह रहा हूं ना, आपको क्या पता, अब मैं तो गलत सलत पढ़ा के भी चला जाऊंगा, उससे होगा क्या। अगर आप वाकई में बहुत सिंसियर हैं अपने दिसंबर के सिलेक्शन को लेके, तो आपका वो अटेम्प्ट चला जाएगा बस। दैट विल बी द कॉस्ट टू अंडरस्टैंड मी। कह रहे सर ने गलत पढ़ाया था, हमें पता नहीं था, और हमारा दिसंबर का अटेम्प्ट चला गया। लेकिन ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना है, दिस इज नॉट डायरेक्टली इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि कोई कुछ भी बताता है उसके पीछे एक प्रॉपर एक थीसिस होती है, एक थ्योरम होती है, कुछ रीजन होता है कि व्हाई आई एम सेइंग दैट x टू द पावर 0 और एनी बेस टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मैं बस आपको एक चीज बताता हूं, मैथ्स में हमेशा प्रूफ चलता है, प्रूफ, लॉजिक, लॉ, लॉजिक, मैथ्स, लॉजिक, ये सब लॉजिक पे चलता है, ठीक है। मैं इसको x टू द पावर 0 को x/x लिख सकता हूं। कैसे? इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो मैं बोल रहा हूं x/x, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? सिंपल है, x से x कैंसिल, 1 आएगा ना। एनी प्रॉब्लम? ये तो डायरेक्टली पता होगा सबको, कोई है जिसे नहीं पता है? फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे कि मुझे क्लास पढ़ानी चाहिए कि नहीं। x टू द पावर x, x/x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक तरीके से कर दिया। अब x/x को दूसरे तरीके से करो। मैंने अभी आपको एक तरीका बताया, अभी बताया था ना, डिवीजन का केस बताया था। तो दिस इज द केस ऑफ डिवीजन, दिस इज पावर 1 एंड दिस इज पावर 1 एंड दिस इज द केस ऑफ डिवीजन। सो वी विल हैव द बेस x, दिस इज 1 एंड आई एम टेकिंग दिस पावर अपसाइड, सो इट विल बी -1, इट विल बी x टू द पावर। तो देखो इसका मतलब भी क्या होता है, और यहीं से हमने क्या निकाला, तो अल्टीमेटली ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इस तरीके से प्रूफ होता है। तो मैं इफ आई एम सेइंग x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, इट मींस बोथ द साइड्स आर इक्वल। अब मैं कुछ भी बोलूं, y टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इट मींस y अपॉन y, y टू द पावर 1 - 1 एंड इट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली, तो मैथ्स में हर चीज का एक प्रूफ होता है। ये जैसे मैं आपको कुछ भी बता रहा हूं, उसके पीछे कोई प्रूफ है, लेकिन आपको इतना ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है। आई टोल्ड यू बिकॉज आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट अप्रोचिंग द क्वेश्चंस। आप अभी किसी अलग तरीके से यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स इन अदर वे, बट आई एम डैम श्योर देयर विल बी फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, इन एवरी batch I get few students, after completion of the class they start approaching maths in the different way, and sometimes what happens, the students find their own way. आपका जो पेपर 1 में आई थिंक रिसर्च मैथोडोलॉजी का भी सब्जेक्ट होता है, तो what is that research? Once you get the concepts, then you start preparing by your own way. I can do this one, I can do this one, I can apply this one. So even you can create your own methods. तो मेरी मैथ्स की क्लास में क्या है कि मैं सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर। आपके जब कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे होंगे तो हो सकता है कि कोई डिटो क्वेश्चन मैंने आपको ना बताया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स की वजह से आप वहां पर सही कराओ, बिकॉज इन एग्जामिनेशन हॉल यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, आपको वो करना ही करना है।
तो वहां पर कभी क्या होता है कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वो डायरेक्टली मैंने नहीं बताया, मान लो, तो आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, लेकिन अगर मैं यहां पर रटाऊंगा तो वैसा ही क्वेश्चन आना चाहिए. इफ यू आर नॉट गेटिंग द सेम क्वेश्चन देन यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एंड यू आर जस्ट लूजिंग 2 नंबर्स और 2 मार्क्स एवरी क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है. आप में से किसी ने एसएससी की प्रिपरेशन की है? एसएससी सीजीएल, तो एसएससी का एग्जाम दिया है? एसएससी का एग्जाम ये समझ लो कि एक अलग ही वॉर चल रहा है वहां पर. आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं? इफ वी टॉक अबाउट नेट जेआरएफ, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन एग्जाम? 150 एंड टाइम 3 hours. इट मीन्स 50 क्वेश्चंस पर आवर. बहुत सफिशिएंट टाइम. अब इनका सुन लो, 100 क्वेश्चंस इन 1 hour. 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, जिसमें से 25 क्वेश्चंस मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश एंड 25 जीएस. और ये मत सोचना बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन में दम होगा. आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो उनके सामने कुछ है ही नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूँ. आपके इफ वी टॉक अबाउट नेट एंड जेआरएफ, इट इज अ गुड थिंग इन नेट जेआरएफ सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर कि आपके क्वेश्चंस रेलेवेंट होते हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको हेल्प करेंगे. उस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. बट एसएससी में ऐसा कुछ नहीं होता. एसएससी में 25 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन एक अलग लेवल का होगा. आपको बस उसकी डायरेक्ट अप्रोच पता होना चाहिए. If you are going to solve, questions will be like that you can solve, but after taking a lot of time. But they cannot allow because you have only 15 minutes for 25 questions. आपको 25 क्वेश्चन जो है एवरेज 50 मिनट्स में करने हैं. और ये भी मत सोचना मेरिट भी बहुत ऊपर जाती है. तो एक एग्जाम ही ऐसा होता है कि जैसे ही आपके सामने जो विंडो ओपन हुई तो फिर आप सांस नहीं ले सकते हो. और सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात क्या है कि जितने भी क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि काम भी करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूछे जाते हैं. तो ये आपके में अच्छी चीज है कि वॉट एवर क्वेश्चन यू आर गेटिंग इन एग्जामिनेशन दैट विल बी हेल्पिंग यू फॉर इंटायर लाइफ. तो इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो आप. लेकिन ये क्या करें, ठीक है. तो अब यहां पे जाते हैं तो यहां पे आपको एक डायरेक्ट अप्रोच पता होना चाहिए. लेकिन ये क्वेश्चंस उनके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं जिनका पहले से कॉन्सेप्ट है. उससे क्या है कि डायरेक्ट अप्रोच तक जाने तक उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता. लेकिन अगर कोई ये इनिशियल स्टूडेंट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्कूल, इट्स अ लॉन्ग टाइम एंड somebody wants to re-prepare for the examination, so they directly come and they start working on being like parrot on cramming the approach, direct approach, but they don't have time or they don't understand. If they don't have the hold on the concepts, it is not easy for them to go for the direct approach. लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट अप्रोच भी आपको जल्दी समझ में आता है. ठीक है. बट मार्केट में होता क्या है कि कोचिंग्स वाले बताते नहीं है. उन्हें तो एक बैच खत्म करना है, बताते नहीं है. जब तक उनको समझ में आता है तब तक बैच खत्म हो जाता है. ठीक है. तो कई जगह तो सिर्फ मिंटिंग मनी, डू यू नो मिंटिंग मनी? एक होता है अर्निंग मनी, एक होता है मिंटिंग मनी. हिंदी में बोलते हैं, एक तो कहते हैं पैसा कमाना है. तो पैसा कमाना क्या होता है? यू आर वर्किंग हार्ड देन यू आर अर्निंग मनी. एक होता है पैसा छापना. कहते हैं ना, यही तो बोलते हैं, अरे पैसा छापना है लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए. तो छापने को बोलते हैं मिंट. वो 2 नंबर का होता है. सो इफ यू आर मिंटिंग मनी देन इट्स प्रॉब्लमेटिक. तो मार्केट में ज्यादातर जगह पे मिंटिंग मनी चल रही है. अब ये आपको डिसाइड करना होता है, स्टूडेंट को डिसाइड करना होता है कि उनका पैसा मिंटिंग मनी में जाना चाहिए, किसी की अर्निंग में जाना चाहिए. इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द अर्निंग ऑफ समवन देन इट इज प्रोडक्टिव फॉर यू. अदरवाइज आप जा रहे हो, पैसे दे रहे हो. तो हमेशा कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है बस. शुरू में जितना भी टाइम, अब बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे तब आप देखना, इन चीज़ों को मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ. बस वहाँ पे फिर स्पीड बनेगी धीमे धीमे, इसको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे. तो इस तरीके से कोई भी चीज़ आती है. तो मैंने आपको दो बातें बता दी. इन मैथ्स
left hand side is always equal to right hand side. And another thing, we can manipulate the faces but we can never manipulate the answers or final values. अच्छा, थक गए हैं? अभी से थकना भी मत, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना है. आप में से कितने लोगों को लगता है कि इफ यू गेट सेलेक्टेड इन JRF, इफ यू गेट द पोजीशन इन JRF, तो बस लाइफ में सब कुछ खत्म, अब वहीं पे जाके अपना सेटल हो जाना है? अरे कोई तो होगा जो सोचता होगा कभी कभी JRF हो जाए, टेंशन खत्म. मतलब मेन थिंग इज दैट डोंट ट्राई टू स्टॉप एट एनी पॉइंट, स्पेशली इन दिस एज. ये रुकने वाली एज नहीं होती है, इसमें चलते रहो, ठीक है. एंड इवन इन द इंटायर लाइफ नो नीड टू स्टॉप. ऐसा नहीं लाइफ में सब कुछ पढ़ाई और ये कंपटीशन की तैयारी करते रहोगे. लाइफ में वेल सेटल्ड भी हो जाते हो, फिर भी देयर आर सो मेनी सिचुएशंस दे कीप अराइजिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बट नेवर ट्राई टू स्टॉप. कहीं पर रुकना नहीं है. और अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ना रुकना है ना झुकना है, ठीक है. ये सब आपका माइंडसेट है. ऐसे लोग जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अच्छा खाते पीते हैं, जो खूब अच्छा खाते हैं पीते हैं, हालांकि इट्स वेरी कूल एवरीवेयर. इफ वी टॉक अबाउट द यूथ्स ऑफ टुडे, दे कीप सेइंग आई एम वेरी फूडी, दे थिंक दिस इज कूल, बट व्हाट दे आर ईटिंग रबिश थिंग, and they think that this is kind of fooding and this is the cool habit. This is not. लेकिन आपने ऐसे लोग देखे होंगे, जो मैंने तो खैर देखे हैं. एक when I was in my village, maternal village, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग अंकल थे. उनको बिल्कुल हेल्दी चीज़ें खाने का बड़ा शौक था और उनके बारे में बहुत चर्चाएं थी कि वो खाने पीने के बड़े शौकीन हैं. तो एक दिन मैंने उनका ये कारनामा देखा कि उनको अचानक रात के 2 बजे क्या याद आया कि उन्होंने अपने दोस्त वगैरह उठाए. अब सब सो रहे होते हैं गांव में, 2 बजे तक तो एक दो नींद भी पूरी हो जाती है. आई थिंक वहाँ सोई 7-8 बजे तक तो सब जाते हैं. तो उठाया, बर्तन वगैरह लेके जहाँ उनके फील्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ जा रहे थे. बाद में पता चला कि उनको जो भट्टी वगैरह बनाते हैं, मिट्टी विट्टी को खोद के वो पूरी उसकी दाल, मिट्टी के बर्तन में दाल बनती है, हांडी वाली दाल बोलते हैं, उनको वो खाना बहुत पसंद था. और कुछ ग्रेन्स वगैरह का कुछ उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है उन्हें, और उसमें घी वगैरह बहुत हेल्दी होता है. मतलब वो रात को उन सबको उठा करके, उनको ऐसा खाने का वो था, वो रात के 2 बजे ले गए सभी को और सुबह 6 बजे तक सब कुछ पका के और वहाँ बैठ के पेड़ के नीचे खा रहे थे. तो फूडिंग जो हैबिट्स होती है ना, वो ये होती हैं. और कुछ भी ऐसा नहीं था जो अनहेल्दी था. यहाँ पे आप जाओ 2 मिनट में किसी भी मॉल्स या मतलब किसी भी फूड शॉप वगैरह में, आप फूड रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ गए, आपने हॉट डॉग, पनीर, बर्गर, आजकल तो मोमोज का बड़ा फैशन चल रहा है, खा रहे हो. तो दिस इज नॉट गुड फूडिंग हैबिट्स. तो लाइफ में हमेशा चलते रहो, अच्छा खाओ, हेल्दी रहो. हेल्थ का इंपॉर्टेंस अभी लोग समझते नहीं है. इसका बस एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप ऐसा करना, आपका लाइफ का या पूरे वर्ल्ड में, या इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज ऑलरेडी डाइवर्स इन एवरीथिंग, इवन इन द वेदर. इफ यू वांट एवरी टाइम रेन, यू कैन गो टू द मेघालय, चेरापूंजी, मासेंड्राम प्लेस, 24 hours ऑलमोस्ट रेन यू कैन फेस. इफ यू वांट एवरी टाइम स्नो, जस्ट गो टू द हिमालयाज, कश्मीर, बियॉन्ड द कश्मीर. ओके, इफ यू वांट बीचेस, there are so many, 7,516.6 kilometer coastlines of India. You can go anywhere. Okay, if you want 24/7 summer season, you can go. There are so many places. So India is already diverse. आप किसी ऐसी जगह पे जाइए, ऐसे लैंडस्केप पे जाइए जो आपका ड्रीम लोकेशन रहा हो, आप चले जाओ. लेकिन आपको फीवर आ रहा है बहुत तेज, और आपको वो अपॉर्चुनिटी, उस चीज को जीने की अपॉर्चुनिटी वंस मिली है, वंस इन लाइफ, जो आपका ड्रीम है, तो मुझे वहां जाना है. आपको वहां खड़ा कर दिया है, लेकिन आपको बहुत तेज फीवर आ रहा है. यू कैन नॉट एंजॉय दैट मोमेंट, वेदर इट इज वंस इन योर लाइफ टाइम एंड दिस इज योर ड्रीम. आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते.
बट इफ यू आर हेल्दी, आप हेल्थ से बिल्कुल फिट हैं, आपका डोपामाइन लेवल, आप समझते होंगे डोपामाइन लेवल, जो हमें अच्छी फीलिंग आती है ना, खुशी खुशी खुश मिजाज होता है, वो आपके अंदर केमिकल जो है डोपामाइन बन रहा है। अगर आपका वो बनता है तो आप एडवर्स सिचुएशंस में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इन चीजों पे भी फोकस करना। अच्छा, मैं 2 कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं छोटे छोटे, उनको याद रखना। जैसे कि मैं बोलता हूं x टू द पावर m, x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर n। तो ये तो आपको पता चल ही रहा होगा इक्वल। व्हाट डज इट मीन? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड and this is, and what is the principle of mathematics? Left hand side is always equal to right hand side because equal sign is there. It means the overall value of this will be equal to the overall value of this. Basics है, यही चीजें कनेक्ट करो। तो देखो, जब in left hand side and right hand side, if we have the same base, then powers will also be equal. If we have the same base, then we have the same powers as well. ठीक है, अगेन मैंने आपको एक चीज बता दी, बट हाउ भाई मैं तो झूठ बोल रहा हूं, मैं तो भूल गया, आई फॉरगॉट। और मैं कैसे भी, मुझे आपको कुछ ना कुछ बताना है, नहीं तो इंसल्ट हो जाएगी, तो मैंने ये बता दिया। आई टोल्ड यू दिस। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरली, अब ऐसा नहीं हर चीज़ें मुझसे पूछने लग जाओ, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन ये है मैथ्स में कि इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। क्या होगा? लॉजिक होगा। तो देखो, अगर मैं बोलता हूं 2 टू द पावर 2 is equal to 2 to the power x, 2 to the power 2, then 2 to the power x. And what is the basic principle of maths? Left hand side is equal to right hand side. The overall value of this will be equal to overall value of this. This is the maths principle. What does it mean? 2 to the power 2. जब हम 2 to the power 2 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 2 into 2 ही तो होगा ना, क्योंकि वही मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन करके सेम बेस, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 + 1 कर देंगे तो दिस विल बी 2 to the power 2। तो मैंने इसकी वैल्यू, तो 2 to the power 2 मतलब 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर क्यूब्स आते हैं ना, आई होप सो यू ऑल नो अबाउट स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। सो व्हाट इज 2 स्क्वायर? दैट इज 4। तो इसकी वैल्यू क्या है? 4 है। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? 4। इसकी वैल्यू भी 4 होनी चाहिए। दिस इज द मैथ्स प्रिंसिपल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप एक बात बताइए, इफ यू हैव 2 to the power x, किस केस में इसकी वैल्यू 4 हो सकती है? व्हाट इज द केस देन द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 4? सिंपल सी बात है, जब x की पावर 2 रखेंगे तभी ये 4 हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? और कोई वो नहीं है। x की पावर 2 रखेंगे देन इट विल बी 4। इट मीन्स हमें यहां पर x की पावर 2 रखनी ही पड़ेगी, तब ये 4 होगा, और ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। इट मीन्स यहां पर हमारे पास वी हैव ओनली वन ऑप्शन टू फुलफिल द प्रिंसिपल ऑफ मैथ्स, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड व्हाट इज दैट ऑप्शन? वी हैव टू राइट हियर 2, देन इट विल बी इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यही ऑप्शन है। तो इसी को मैंने यहां पर डायरेक्ट लिखा है कि इफ वी हैव 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विद द सेम बेस सेम है, तो उनकी पावर्स भी सेम होंगी, तभी ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। और यहीं से आप एक चीज और याद कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो सिंपल, यहीं से याद करना। इफ यू कीप कनेक्टिंग तो चीजें ज्यादा याद होंगी। अगर मैं बोलूं a to the power x इज इक्वल टू b to the power x, अब यहां पे क्या हो रहा है? व्हाट इज, यहां पर बेस सेम थे बट यहां पर पावर सेम है। When you have the same base, then powers will be equal. If you have the same power,
देन बेस विल बी इक्वल। कॉन्सेप्ट यही है। अब अपने आप दिमाग लगा के बताओ कैसे। कॉन्सेप्ट यही है। अगर मैं आपसे बोलूं, इफ आई एम सेइंग लाइक x to the power 2 is equal to 2 to the power 2। ठीक है, पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है। ओके, तो मुझे x की वैल्यू बतानी, आई नीड टू टेल द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है ओवरऑल 4। तो यहां पर व्हाट इज द ऑप्शन बाय विच वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x एंड वी कैन गेट 4, क्योंकि इक्वल होने चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है कि हमें x की जगह पर 2 रखना पड़ेगा। तो 2 to the power 2 इट विल बी 4। ठीक है, तो इसी को हमें यहां पर डायरेक्ट बता दिया जाता है कि दैट इफ वी हैव द सेम पावर्स एट बोथ द साइड्स विद डिफरेंट बेसिस देन द वैल्यू ऑफ बेसिस विल बी सेम एंड वाइस वर्सा। इफ वी हैव द सेम बेस विद डिफरेंट पावर्स देन पावर्स विल बी सेम। ये चीजें एक जगह लिख लो, क्योंकि आगे जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहां पर ये डायरेक्टली अप्लाई करने होते हैं जी। ठीक है, आपके सामने सिचुएशन आती जाएगी एंड यू नीड टू सॉल्व ऑल दिस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशंस। हाँ जी, यहां तक समझ में आया? कोई लोड तो नहीं हो रहा अभी? तो हो गया? इज देयर एनी प्रेशर? अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, ये तो मैं आपको 5th 6th क्लास वाला फील करा रहा हूं बस। ठीक है, और क्या है इसमें? इसे क्लियर? अब एक चीज ये है, अच्छा वैसे मैं ऐसे लिखता हूं, आई राइट इन दिस वे। सो व्हाट इज इट कॉल्ड? देयर इज अ टर्म, पर्टिकुलर टर्म x upon y, ये लिखा है। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड इस फॉर्म को जो बोलते हैं ना, इसे फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ना 1/2 या 1/3, 4/7, कुछ भी लिखते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? व्हेन वी राइट डाउन फ्रैक्शन, दिस इज द फॉर्म एंड दिस प्लेस एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर and this part is called denominator। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, दिमाग नहीं मारना, ठीक है। न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। ठीक है, जिसको जरूरत है वो कर लेना। बट फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। और इस फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। लाइक जैसे 1/2, 1/3, 4/7 ऐसे नंबर्स लिखते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। आज के बाद कोई भी पूछेगा व्हाट इट इज कॉल्ड, व्हाट इज द प्रॉपर टर्म। आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको अगर उसकी टर्मिनोलॉजी अच्छे से पता है तो बहुत इंप्रेसिव होती है। अगर आप जाके किसी को ये बताओगे देखो ऐसे लिखते हैं x upon y, इसको ऊपर वाला हिस्सा बोलते हैं, इसको नीचे वाला हिस्सा बोलते हैं, तो दिस इज नॉट द वे। ठीक है, हो सकता है सामने वाला समझ जाए लेकिन आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड पावर, दिस इज कॉल्ड बेस, ओके, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर, दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो टर्म्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आप अपने पेपर 2 वगैरह में या पेपर 1 में ही काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मेन टर्म पर फोकस करो। और मेन टर्म पर फोकस करने से क्या होता है कि जब आप नोट्स बनाते हो तो कीवर्ड्स लिखते हो ना, तो एक कीवर्ड में आपको पूरी डेफिनेशन याद हो जाती है कि इसमें इस तरीके से शॉर्ट नोट्स भी बन जाती हैं, तो इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब मैं यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ, माई मेन क्वेश्चन इज नॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इफ आई हैव 2 fractions, x upon y and another fraction that is a upon b, and I want to multiply, so what will be the answer? How you will multiply? बताओ। हाँ क्या? हाँ, ax upon by, करेक्ट। मतलब इसमें छोटी सी बात क्या है, ये वो चीजें हैं कि अचानक आपके सामने अगर आ गई तो आप कभी भी कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे कि मैं बोलूं 1 into 1 upon x, आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर पोर्शन को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
जितने भी न्यूमिनेटर पोर्शन है x इंटू ए अपॉन जो डिनोमिनेटर का पोर्शन है उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो y इंटू वी। तो दिस इज आंसर। अदरवाइज यू कैन राइट डाउन लाइक ए एक्स अपॉन बी वाई या एक्स ए अपॉन वाई बी, वॉट एवर यू लाइक, यू कैन चेंज द सीक्वेंस। अब जैसे ये आए, इसमें दिस इज लुकिंग लाइक फ्रैक्शन बट दिस इज नॉट लुकिंग लाइक फ्रैक्शन, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इसे अपॉन वन करके फ्रैक्शन बना लो, क्योंकि अपॉन वन बाई वन आप किसी में भी कर दो, देयर विल बी नो चेंज, ओके। बट ये फ्रैक्शन बन गया, आपका काम आसान हो गया समझना। अब आप क्या करोगे, वन का वन में मल्टीप्लाई कर दोगे, वन इंटू वन अपॉन वन इंटू एक्स, तो दिस विल बी वन बाई एक्स। एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस और लिटिल बिट प्रैक्टिस, you can directly go and understand what will be the answer, but initially you need to go like this if you are coming to the mathematics after a long time. So this will be the simple steps, okay? ये समझ में आ गया। अब एक जो मेन चीज है, इरेज कर दो। अगर मैं आपसे बोलता हूं a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, now I am going to divide the fractions. ए डी अपॉन बी सी, करेक्ट आंसर। लेकिन कितने लोगों को ऑनेस्टली पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कितने लोग कर सकते हैं? गुड, ये मैं बताई इसीलिए मुझे पता है, आप लोग तो बोलोगे नहीं, बट मुझे पता है कि स्टूडेंट को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। और बीच में किसी ने पूछा तो बताऊंगा नहीं, स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर सब बता देते हैं, ठीक है। वो दूसरा जो फेस होता है ना, सेकंड फेस ऑफ द कॉइन, जब वहां चीज चल रही होंगी तो वहां भी रिपीट नहीं करने वाला हूं, जो है यहीं पे है। देखो ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, क्या है? फ्रैक्शंस हैं। तो जो आपकी तो दिस इज न्यूमिनेटर फ्रैक्शन, इसमें मेन जो अपॉन का जो साइन है वो ये वाला है, ठीक है। लिखने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आप आए और यूं करके अपॉन सी अपॉन ऐसे करके कुछ उल्टा सीधा लिख दिया आपने। यू मस्ट नो हाउ टू राइट, दिस इज फ्रैक्शन, सो वी विल राइट विद दिस स्मॉल sign and this is the main sign and again there is another fraction, तो ये तो मिटा देते हैं। आपको इसमें क्या करना है कि you have numerator fraction and you have denominator fraction, because this portion is called numerator and this portion is called denominator and it whole is called fraction। तो जो numerator की fraction होती है, the fraction of the numerator place we will write down as it is, a upon b, and another fraction at the place of denominator we will reverse the numbers, so this is c by d, we will write down d by c and we will multiply both of them। और multiplication का I already told you just immediate before of this question, so a into d upon b into, or you can write down ad upon bc, whatever you like, ओके समझ में आया? अब इसके कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं। 4 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 2, इसका आंसर क्या होगा बताओ? देखो अभी तो आप लिखने में यूजिंग पेन एंड पेपर टाइम ले सकते हो, लेकिन साइमल्टेनियसली थोड़ा सा प्रेशर लेके आपको ज्यादातर चीजें जो बेसिक्स होती हैं, यू नीड टू अवॉइड यूजिंग पेन। आपको देख करके आंखों को चलाना है ज्यादा से ज्यादा, आंखों का ब्रेन, वो कहते हैं ना आई एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन जो होता है, उसको बढ़ाना है धीमे धीमे करके। हर चीज लिखने की नहीं है, स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो, बट इनिशियली आप यू कैन डू दिस, बट आफ्टर दैट यू नीड टू अवॉइड यूजिंग पेन, आई एंड ब्रेन। तो देखो ये एक फ्रैक्शन है। अच्छा आंसर किया, क्या आया? 8 बाई आपका 8/9 आ गया, पूछो आपका आ गया सभी का। तो 8/9, तो क्या किया, सबसे पहले ये फ्रैक्शन है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, वी विल राइट डाउन एज इट इज एंड वी विल रिवर्स दिस डाउन साइड फ्रैक्शन, दिस इज 2/3 एंड इनटू 4 into 2 that is 8 and 3 into 3 9, तो it will be AC upon B। आंसर करेक्ट है। कितने लोगों का आया या कितने लोगों को पता है ये AC upon B? ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पोर्शन रहता है व्हेन वी डिवाइड फ्रैक्शंस, तो थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन बिल्कुल दूर। ये आ गया।
तो कितने लोगों ने कर लिया? आगे आपका AC अपॉन B, या राइट। ठीक है, देखो जो मैं बताता हूं ना कि मैनिपुलेट, वी कैन मैनिपुलेट द फेसेस, तो इस चीज की कैसे, अभी मैंने बताया था अपॉन 1 कर लिया था जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो ऐसे हम मैनिपुलेट करने के लिए थोड़ा सा फेस चेंज कर लेते हैं। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई है, आई टोल्ड यू ओनली वन थिंग, व्हाट दैट इज, अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, यही तो बताया था ना, इफ यू हैव टू फ्रैक्शंस, वन इज एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड इज एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम इसको क्या कर देंगे, AC अपॉन BD। बट हियर इज you are having only one fraction at the place of denominator, but there is no fraction at the place of numerator। ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, यही तो आ रहा है ना। तो बस आपको क्या करना है कि यहां पे सिंगल नंबर है ना, मैं इसको a अपॉन 1 कर दूं तो मैं कर सकता हूं। इफ आई एम राइटिंग a like a by 1, the value will remain same, वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये फ्रैक्शन बन गया आपका, और इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं b अपॉन c। गेटिंग माई पॉइंट? फ्रैक्शन बना लो, आपके सामने फ्रैक्शन नहीं है, बाई 1 करके उसे फ्रैक्शन बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बस, अब तो आप कर ही दोगे, इसे एज इट इज लिख देंगे a अपॉन 1, और इसको रिवर्स कर देंगे c अपॉन b और इनटू, तो AC अपॉन b। आया समझ में? और सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं a अपॉन b अपॉन c, अगेन जहां पर जरूरत है वहां पे काम करना है बस। ओके, सो हियर वी नीड टू हैव अ फ्रैक्शन, तो मैं इसे अपॉन 1 कर देता हूं। अगेन a अपॉन b एज इट इज इंटू 1 अपॉन c, इसे रिवर्स कर दूंगा, इट इज a अपॉन, प्रैक्टिस के लिए कर दूं साफ, प्रैक्टिस के लिए जैसे 4 अपॉन 3/2, ये क्या होगा? करो करो थोड़ा दिमाग। 8 अपॉन, हर चीज में पेन नहीं चलाना है, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अब आपके सामने है, थोड़ा सा ब्रेन चलाओ। होता क्या है कि बस स्टार्टिंग में प्रेशर लगेगा बस आपको, और 1-2 आंसर्स आपके देखने के बाद सही आने लग गए, प्रेशर खत्म हो जाएगा। ओके, देख के करो बस, पेन नहीं चलाना है। 4 बाई, आपको पता 4, 1 नीचे रहेगा, 2 ऊपर जाएगा, तो 4 × 2 8/3। कोई भी चीज आपको तब तक टफ लगती है अंटिल यू आर नॉट स्टेपिंग अप, अंटिल यू डेयर टू स्टेप अप। और एक बार, इतना जल्दी एक वर्ड होता है, एक एक्सक्यूज, बहाना बना के चला गया मेरे सामने। ठीक है, वैसे तो क्लास ओवर होने यार, अभी तो 1 घंटा रह गया है। अभी 1 घंटा बोलते ही सब घड़ी देखने लग गए। ठीक है, 4 अपॉन 3/2, तो सिंपल 4, इसको अपॉन 1 कर लेंगे, 4 अपॉन 1 इंटू 2/3, दिस इज 8/3। आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, काफी मेजर पोर्शन आपके करा दिए हैं। अब क्या है, कोई प्रॉब्लम है अभी? अच्छा, आप में से सब अपनी अपनी हॉबी बताओ मुझे, आपकी हॉबी क्या है? अच्छा, बनाने का टाइम नहीं मिला है, क्या होता है ना। अब मैंने वहां से पूछा है तो आगे आते आते सब बना के बैठेंगे कि मैं ये बताऊंगा बस। वैसे जनरली क्या पसंद है खाली टाइम में? क्रिकेट खेलना, तो उसके लिए तो ग्राउंड भी चाहिए। तो आपको अपनी हॉबी पूरी करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। यू नीड सम अदर पर्सन्स टू फुलफिल योर हॉबी। हाँ, अच्छा कोई है? अच्छा, आपकी हॉबी डांस? अच्छा, आपकी पता नहीं है? अरे कुछ तो होगा, हॉबी सबकी होती है। ये तो जनरल क्वेश्चन है, जब भी आप कहीं जाओगे तो हॉबी के बारे में पूछेंगे, क्योंकि
आप अगर पढ़ने की बात करो, ऐसा कोई पढ़ने वाला पैदा नहीं हो जो हर वक्त पढ़ता ही रहता है, और जो हर वक्त पढ़ता रहता है वो किसी काम का नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसा टाइम आता है, दैट टाइम यू वांट टू रिफ्रेश योरसेल्फ, उस समय आप क्या करते हो, क्या मतलब किससे आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा रिफ्रेश फील होता है, फिर यू बैक टू योर स्टडी, ऐसा कोई काम तो होगा, गप्पे मारना दोस्तों के साथ, या खाना बनाना। बहुत से लोगों को कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। समटाइम्स आई फाइंड कुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समटाइम्स, अगर कोई रोज़ बनवाएगा तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। लेकिन और दूसरी बात है, मैं अपने लिए ही खाना बनाना प्रेफर करता हूँ, उसमें कोई कमी भी हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे के लिए बनाओ अभी कमी निकाल दे तो अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, आपकी हॉबी? लिसनिंग टू म्यूजिक। ये तो फास्ट या बिल्कुल स्लो, गजल्स टाइप होती हैं, बाहर के तो समझ ही नहीं आते, तो स्लो म्यूजिक पसंद है या फास्ट? जब आप वॉक-इन्स में जाते हो, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट इंटरव्यूज, तो अगर आप अपनी हॉबी में म्यूजिक वगैरह का बताते हो तो वो ये जानना पसंद करते हैं जनरली कि आप कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, स्लो, रोमांटिक या फास्ट, हिप हॉप या जिम मोटिवेशंस, और उससे वो आइडिया लगाते हैं कि आपका नेचर कैसा होगा काम में। अगर आप बिल्कुल फास्ट ट्रैक सॉन्ग्स, डांस फ्लोर, ट्रांस म्यूजिक ऐसा सुनना पसंद करते हैं तो यू आर बिलीव्ड टू बी एनर्जेटिक, कि आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हो, आप काम अच्छे से करोगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ये भी याद रखना। आपकी हॉबी? ट्रैवलिंग। तो कहाँ घुमा है आपने? अच्छा, इट जस्ट हॉबी और यू वांट टू एक्सप्लोर इन द फ्यूचर? अच्छा, उत्तराखंड तो घूम लिया होगा कभी, उसके अलावा यूपी? यूपी जरूर घूमो, बिकॉज इट यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ उत्तराखंड प्री 2000 तक यूपी और उत्तराखंड एक ही थे, ठीक है। 2000 तक झारखंड और बिहार, उत्तराखंड एंड यूपी, और एमपी एंड छत्तीसगढ़, ये एक एक थे। 1 नवंबर, 9 नवंबर एंड 15 नवंबर 2000 को ये तीनों अलग हुए, ठीक है। ओके, थोड़ी बहुत एक दो क्वेश्चन तो जीएस वगैरह के भी आते हैं, यू फील, तो बीच बीच में कुछ बताते रहता हूँ, तो वो चीज़ें भी फोकस करते रहना। हाँ, आपकी हॉबी सोच लिया? पेंटिंग वगैरह, ओके। आपका? व्हाट? या ओके, ये भी अच्छा है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, उसमें आपकी पर्सनैलिटी, ड्रेसअप, नीट एंड क्लीन, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। फर्स्ट इंप्रेशन से ये फ़ायदा पड़ जाता है, आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाती है, और उसके बाद अपने टैलेंट से आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी गुड टू हैव द हॉबी, टू बी नीट एंड क्लीन, टू लुक गुड, और इससे अपना भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। ये तो सबके लिए। ओके, चलो, हॉबी में इसलिए पूछ रहा था कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू राइट नाउ। ओके, आप में से कोई सिंगिंग नहीं करता? अच्छा, कोई नहीं, देखो अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन आपको जब भी मौका मिले यहाँ पे आके अपनी अपनी हॉबी जो कर सकते हो करने का, तो मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप चाह कर भी ऑडियंस को इकट्ठा करके ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते जहां आप खड़े होकर बोलो। लेकिन ये याद रखना कि लाइफ टाइम का जो कॉन्फिडेंस है ना, आपने कभी लीडर्स देखे होंगे, कितनी कितनी पब्लिक होती है, हालांकि इतने बेवकूफ लीडर्स होते हैं, लेकिन एक चीज उनमें पक्की होती है, एक तो आईक्यू बहुत जबरदस्त होता है, कहां पे बात को कैसे काटना है, और कॉन्फिडेंस टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, जबकि उन्हें यह भी पता है कि कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन ही पूछ सकता है और सबके सामने। तो जहां से जो चीज सीखने की होती है, यू कैन गो फॉर दैट। तो कॉन्फिडेंस पर काम जरूर करना है, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ऑल इन वेन इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, इफ यू डोंट डेयर टू कम इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। अल्टीमेटली हर कोई अपनी ऑडियंस ही बनाना चाहता है। यूट्यूब पे देखो, न्यूज कुछ नहीं होगी, बहुत से वो थंबनेल ऐसा डाल देंगे तो वो टैप करेगा ही करेगा, ठीक है। सबको ऑडियंस चाहिए, व्यूअर्स चाहिए, आपको भी चाहिए। ये मत सोचना आपको नहीं चाहिए, अभी आप पढ़ रहे हो, जब आप आगे जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो किसे पढ़ाओगे?
उन्हीं में से आपके फैंस बनेंगे, कुछ एनिमीज भी बन सकते हैं आपके। खैर वो टीचर स्टूडेंट में ऐसा कुछ ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन आपको अल्टीमेटली एक ऑडियंस ही मिलेगी, आपको उसी को इम्प्रेस करना है, ठीक है। तो वेन एवर यू हैव अ चांस अपॉर्चुनिटी टू कम इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ये बहुत अच्छा वे होता है अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने का। हाँ, वो अलग बात है कि फर्स्ट टाइम यू विल बी कमिंग हियर और इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इट विल लुक लाइक डिफरेंट वर्ल्ड, बट समहाउ यू नीड टू स्टार्ट। आप पहली बार आएंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे एज यू आर कमिंग हियर, आपका जो डिफिकल्टी लेवल है बिल्कुल रिड्यूस होता चला जाएगा, तो वहां से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और मैं अपनी क्लास में अलग अलग तरीके से, बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें मैं कोवर्ट रखता हूँ, छुपा के रखता हूँ, कैसे अलग अलग तरीके से यहाँ पे बुला लेता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं बुलाऊँ, लेकिन तब बुलाऊंगा जब आप सब लोग आपस में फ्रेंड्स हो जाओगे, एक फैमिलियर सिचुएशन हो जाएगी, कोई स्ट्रेंजर नहीं होगा, यहाँ पे सब एक दूसरे को जानते होंगे। तो जब भी मैं बुलाऊँ तो मौके का फ़ायदा उठाना है और आ जाना फटाफट, ठीक है। नहीं आओगे तो इसमें नुकसान किसका है? मेरा, आपका, ठीक है। ओके देन, रीअटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस व्हाटएवर आई टॉट यू टुडे। ज़्यादा हार्ड तो कुछ है नहीं, बस देखना है आपको। और मेरा आज का जो एक मंत्र है वो याद रखना कि ट्राई टू यूज योर आई, ट्राई टू मेक आई एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एंड ट्राई अवॉइडिंग द पेन। इफ इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज द पेन एंड पेपर्स, ट्राई टू यूज योर आईज एंड ब्रेन। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, ये प्रेशर लगेगा थोड़ा सा। एक बात बताओ कि अगर हर चीज आसान होती तो हर कोई कामयाब नहीं होता। और जबकि कामयाबी और नाकामयाबी के बीच में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो डर के मारे शुरू नहीं कर पाते हैं। बस जब आप एक बार शुरू करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है। तो जब भी मैं कोई चीज कहूं तो ट्राई टू स्टार्ट विद दैट, ओके। और आपको एक दो बार प्रेशर लगेगा, थर्ड क्वेश्चन पे आते आते ही लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल, अब तो समझ में आ जाता है। और जब वही आप किसी के सामने जाके आंखों से कोई क्वेश्चन कर दोगे, वो पेन पेपर चला रहा होगा, यहीं से थोड़ा सा आपका इंप्रेशन क्रिएट होगा। वो देखा, कहते हैं अरे इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, इसने देखते ही सवाल कर दिया। तो देखते ही कुछ नहीं, आपने प्रैक्टिस की है थोड़ी बहुत तो हो गया। तो इट्स नॉट लाइक मैजिक, ओके, इट कैन बी पॉसिबल। आगे बढ़ना है तो अपने कुछ इंस्पिरेशंस बनाओ, और सेटिस्फाइड रहना है तो नीचे देखो। अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छी लाइफ नहीं है तो उन लोगों को देखो, किसी का, बहुत से लोग होते हैं ना सब कुछ है फिर भी अपने, अरे मेरी स्किन पे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, जरा उनको देखो जिसका किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तब आपको पता चलेगा आपका सब कुछ है, ठीक है। और आपको लगे कि लाइफ में सब कुछ मिल गया, अब क्या करूं, तो थोड़ा सा उन लोगों को देखना जो आपसे बहुत आगे हैं। यहीं पे बैलेंस करना है बस, ठीक है। जैसी प्रॉब्लम वैसी मेडिसिन। डॉक्टर के पास जाते हैं, आप हेडेक का बोलते हो तो क्या वो पैर दर्द की दवाई देता है क्या? दवाई तो हेडेक की देगा ना। तो जैसी प्रॉब्लम है आपको वैसे ही सोच के आगे बढ़ना है, और यहीं से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्रिएट होती है। हर सिचुएशन में anyone is coming in front of you and anyone is trying to make you confused, okay, try to make you victim, never try to be the victim। अपने आप को इतना जबरदस्त स्टेबल रखना है कि कोई आंधी भी आ जाए ना, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। आप में से ज्यादातर लोग, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग, मोर देन 95% लोग यहाँ पर घर वालों से कैसे लड़के झगड़ के, आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स, कैसे भी करके उन्होंने फीस दी होगी, यहाँ पे आए होंगे एक एम को लेकर। लेकिन जब आप जाओगे और इसके बारे में किसी को बताओगे, रिलेटिव्स, कजन, तो ऑलमोस्ट मोर देन 95% केसेस में वो आपको डिस्करेज करेंगे। दे कैन हैव मेनी वेज, लाइक दे कैन से अरे तुमने वहां पे एडमिशन क्यों लिया, तुम वहां पे ले लेते, ये कर देते, ये कंफ्यूजन। सेकंड, अरे जेआरएफ क्यों कर रहे हो, तुम तो वो कर सकते थे, इसमें ये हो जाता। आपको ये बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको अपने फैसले पर, यू हैव टू स्टे ऑन योर डिसीजन, बिकॉज यू नो वेल दैट हु आर यू। आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते। आपके बाद अगर कोई जानता है तो आपके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन आपके बारे में हर चीज आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं। तो हु द हेल इज थर्ड पर्सन हु इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। तो ये तो फ्री का ज्ञान तो चलता रहेगा, लेकिन किसी ने कुछ कहा आप टेंशन में आ गए। नहीं, आपने डिसीजन ले लिया, और इसके लिए बेटर ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, ट्राई नॉट टू टेल एनीवन, अपना साइलेंटली काम करो। आप साइलेंटली काम करोगे, आपको कोई रोकने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब आप बताओगे
तब वो कोशिश करेंगे आपको रोकने की। और जो भी आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, he or she knows very well that you have that potential and they want to stop you. तो अपने डिसीजन पे कभी भी कोई कुछ भी कह दे तो ये नहीं डिसअपॉइंट हो गए, आपका डिसीजन बेस्ट है। और ऐसे लोग मिलेंगे, अगर मैं आपको ये चीज ना बताऊं, अचानक ऐसे लोग मिल जाए तो हो सकता है कि आप बैलेंस ना कर पाओ, लेकिन अब मैं बता रहा हूं तो पहले से इतने प्रिपेयर्ड रहा करो, कोई कुछ भी कहे अवॉइड करो, अपना काम करो। एंड बेटर टू स्टे अवे ऑफ देम, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ को खींच लेते हैं, और आप थोड़ा सा भी अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उनकी वजह से, तो आप अपना लॉस कर रहे हो। आपको हर वक्त इतना सेल्फिश रहना है कि व्हाट इज प्रोडक्टिव फॉर यू। आपका टाइम इतना यूजलेस नहीं है कि कोई भी आके आपको परेशान करके चला जाएगा, आपका टाइम खा के चला जाएगा। अगर आप अपने दुश्मन के कहने पर अपना अगर 10 मिनट भी खराब कर रहे हो, इट मीन्स ही इज गोइंग टू विन, यू आर लूजिंग, तुम उससे हार रहे हो। तो इस तरीके से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी बहुत अच्छे से रखना है, किसी पे कोई नहीं, अपने पे बिलीफ, एंड नेवर ट्राई टू गेट एनी काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द माइंड। आपका डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट है, और अपना टाइम दो। 6 महीने मेरे हिसाब से तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत है, लेकिन ये मत सोचना कि लाइफ में 6 महीने का टाइम बहुत ज्यादा होता है। आपको देखते देखते निकल जाएगा, अभी आपको देखते देखते पता चलेगा 3 महीने हो गए। ठीक है, तो इस पर भी काम करना है। यू हैव टू हैव द स्टेबिलिटी फैक्टर इन द माइंड। ओके, चलो तो आज के लिए इतना काफी है। अभी तो स्टार्टिंग क्लासेज हैं, इसके बाद मैं एक क्लास और लूंगा जिसमें कुछ बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद 1-2 सीट दूंगा इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड, और फिर उसके बाद वी विल मूव टू द प्रॉपर चैप्टर्स। ओके देन, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।